Hi, everybody. Today's content is going to be very different because today we are treading a different path, that is finance, as opposed to my regular fashion, lifestyle, and travel posts. I realized that, I'm at an age where I want to start investing. I want to manage my finances well, and a lot of people in my audience are in my age bracket. And I'm sure you guys are struggling with the same kind of problems and you want to know how to, get started with investments and how to manage your finances better. And so I'm doing this video today and I've invited a very special guest today. He is Technical Yogi, who's a very famous YouTuber, and he is going to sit with me and talk to me about investments. So let's get started and let's welcome him to my channel. तो दोस्तों मेरा नाम है योगी योगेंद्र और मेरा यूट्यूब पर चैनल है टेक्निकल योगी के नाम से और मिलियंस फॉलोवर हैं और मैं वहाँ पे अपने जो फॉलोवर्स हैं या हमारी एक तरीके से जो यूट्यूब फैमिली है, उनको मैं गाइड करता हूँ कि आप यूट्यूब पे कैसे आ सकते हो या सोशल मीडिया पे आकर आप कैसे पैसा कमा सकते हो, ऑनलाइन अर्निंग आप कैसे कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट कर सकते हो। और आज है हमारे साथ काफ़ी फेमस इंस्टाग्रामर दीक्षा जी और ये एक लाइफ़स्टाइल हैं, ब्लॉगर हैं, लाइफ़स्टाइल ब्लॉगर हैं और इनसे हम बात करेंगे आज इन्वेस्टमेंट के बारे में। इनके बहुत सारे डाउट्स हैं इन्वेस्टमेंट को लेके और ये स्टार्ट करना चाहती हैं। तो देखते हैं क्या है इनके सवाल और मैं ट्राई करूँगा अच्छे से रिप्लाई करने का। तो दीक्षा जी आप पूछ सकते हैं अपने सवाल बिना बिंदास होके पूछिए आप, जो भी आपके डाउट्स हेलो हैं। हेलो योगी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट टू हेलो। मीट यू। काफी अच्छा लगा आपसे पहली बार बात करके। काफी सुना है मैंने आपके बारे में, बट आई हैव नेवर गॉटन अ चांस टू formally meet you or converse with you, and finally we get to do this on this platform, so I'm really enjoying it. Thank you so much. um, I create a lot of content on fashion, lifestyle, travel, lekin in the field of finance or investment I've never really created any content, but I did one session once and I realized that my audience really wants to know more. And when I did a little more research, I figured that women don't invest as much as men do. Like, men have this eagerness to invest and learn more about it, and perhaps females also do. But statistics show that, and I've observed from my personal experience, कि अगर मेरे 8 लड़के दोस्त out of 10, if they are investing in stocks, one female perhaps out of 10 is investing in it. And I don't understand why there's this difference, but I want to change it. And so while I want to create this video for all my audiences, irrespective of the genders, I especially want to do it for my female audience so they know what is the right platform, where to start investment, how to start it, how to get about the basics and everything. And I am level 0 in investments, and so I'd like to understand from you कि how do I start investing? क्या basics है इसके? How do I go about it? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि जो मेल्स हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और वुमेन मैंने बहुत कम देखे हैं। बट अभी Hmm. भी अगर इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो बहुत कम लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इन्वेस्ट कर अच्छा देखते सब हैं, सबको करना तो है, सबको अच्छा लगता है कि यार इन्वेस्ट करेंगे, ये होगा, वो होगा। बट Hmm. प्रॉब्लम ये रहती है एक तो रिस्क फैक्टर है कि यार रिस्क बहुत है और स्टार्ट कैसे करें? और सबसे बड़ी Hmm. बात हम स्टार्ट करें कहाँ पे? तो यहाँ पे Hmm. सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन था कि भाई जब कोई ज़ीरो है, उसको फाइनेंस के बारे में कुछ पता नहीं है, तो क्या वो स्टार्ट कर सकता है? तो बिल्कुल कर Hmm. सकता है क्योंकि इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्टमेंट से आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। Hmm. हाँ, ये Hmm. बिल्कुल सही है कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे एक रिस्क फैक्टर है। अब जहाँ Hmm. पे रिस्क फैक्टर है वहाँ पे नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आपको पहले लर्निंग Absolutely. करना बहुत ज़रूरी है और मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे आप स्टॉक में जाते हो या लाइफ में कुछ भी करते हो, फर्स्ट लर्निंग Hmm. देन अर्निंग। जब तक आप लर्न नहीं करोगे ना, कुछ कर नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो लर्निंग बिल्कुल। कीजिए। आप बात करते हैं भाई स्टार्ट कहाँ से करें? तो अगर बात करें आज इंडिया की तो बहुत सारे ब्रोकर कंपनीज़ है, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। Hmm. अगर हम एक अच्छा एग्ज़ाम्पल लेके चलें तो अभी शेर खान का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस बिल्कुल। इन्वेस्टर Yes. कंपनी है। अभी Hmm. उन्होंने अपना एक डिस्काउंट ब्रोकर ऐप भी लॉन्च किया है एस्प्रोसो करके। बहुत सिंपल Hmm. है, बहुत स्वीट सा ऐप है और ज़्यादा कुछ उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा टिपिकल है या एक यूज़ करने में आपको लगेगा हार्ड है या सीखना बहुत ज़्यादा पड़ेगा। आप सिंपल वे में Hmm. उसे यूज़ कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और इसके लिए कुछ ऐसा भी नहीं है कि आपको लैपटॉप ही चाहिए, डेस्कटॉप चाहिए। हालाँकि आपके पास लैपटॉप है, आप वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। आप डेस्कटॉप पे Hmm. वो भी यूज़ कर सकते हैं। इवन जब ऐप आ गया है तो आप मोबाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करना अब पहले की तरह नहीं रहा, बहुत ईज़ी हो गया। आप मोबाइल से Hmm. स्टार्ट कर सकते हैं। हम्म। तो जैसे आपने कहा कि रिस्क फैक्टर, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स व्हाई समवन इज स्कैर्ड ऑफ इन्वेस्टिंग। क्योंकि यूजुअली लोग तब स्टार्ट करते हैं जब लगता है कि अरे थोड़ा इनकम टैक्स बच जाए, उतना पैसा बच जाए, एंड व्हेन
people, actually think of making more money from their money, तब investment sounds like, a catchy deal. लेकिन भाई रिस्क फैक्टर इतना होता है और समझ नहीं आती कि कैसे स्टार्ट करना है. सो हाउ डू यू थिंक वी शुड इवेलुएट दैट रिस्क, एंड on this platform especially, like you mentioned, espresso एक नया आया है. How do you think the risk factor goes on this? देखिए रिस्क फैक्टर तो जहां रहेगा, देखो मैं बता दूं आपको, लाइफ में भी बहुत ज्यादा रिस्क है. अगर हम लाइफ में लेके चले तो हर मोड पे रिस्क है. अभी मान लीजिए अभी मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ, तो ये भी एक रिस्क है भाई. यूट्यूब का कुछ पता नहीं क्या होगा. जॉब करता हूँ, जॉब कब चले जाए कुछ पता नहीं. सेम वैसे ही इन्वेस्टमेंट में है. लेकिन क्या होता है जब हम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यार हिस्ट्री क्या है इसकी, लोग कैसे इन्वेस्ट करके आगे बढ़े हैं, लोगों ने कैसा पैसा बनाया है वहां से. तो वो सारी चीजें हमें भी सीखनी चाहिए. उसको ट्रैक करना पड़ेगा यार, कौन सी कंपनी है, किसमें हमें पैसा लगाना है, कौन सा स्टॉक्स अच्छा है, कौन सा ऐसा स्टॉक्स है जिसपे कोई कर्जा नहीं है किसी कंपनी पे, किसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है. तो वो सब देख के वो सब चीज हमें सीखनी पड़ती है. वो सीखने के बाद हम स्टार्ट करें. दूसरी बात, अब ये भी नहीं है कि भाई आपको स्टार्ट करना है तो हमारे पास जितना पैसा है सब इन्वेस्टमेंट कर दिया. नहीं, अगर मान लीजिए कोई जॉब करता है या मंथली जितनी भी अर्निंग करता है, उसमें से वो कुछ पैसा इन्वेस्ट करे, कुछ एक सर्टेन कितना अमाउंट उसका हो. percentage, what percentage do you think of an income should somebody, set aside for investments? Like ये एक्चुअल 10%, 20%? देखो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 20% के आसपास उसे इन्वेस्ट करना चाहिए फ्यूचर के लिए. और ये आपको काफी सही रहता है. आप लॉन्ग टर्म में जब इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसका रिटर्न भी मिलता है. और कई बार ऐसा होता है कि आज हम अर्निंग कर रहे हैं और बाद में जब हमें लगे कि यार हमारी अर्निंग ही अब नहीं हो रही है या हमको अब पैसा चाहिए, तो उस वक्त हम उसे यूज कर सकते हैं. तो मेरे हिसाब से अगर हम अर्निंग करते हैं तो हमें 20%, 25%, जितना आपको लगे कि यार एक सर्टेन अमाउंट में हर महीने निकाल सकता हूँ, उतना आपको इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए. और छोटी छोटी इकाइयों में करो. ओके. योगी जी, मुझे ये बताइए कि इफ आई हैव जीरो फाइनेंस बैकग्राउंड, मेरे को कोई नॉलेज नहीं है इन्वेस्टमेंट्स का, हाउ शुड आई गेट स्टार्टेड विद इन्वेस्टमेंट्स? की कोई अच्छा प्लेटफॉर्म हो या समवेयर वेयर आई नो आई कैन स्टार्ट माय इन्वेस्टमेंट, लाइक हाँ देखिए, सबसे मैं आपका एक एक क्वेश्चन का आंसर देता हूँ. पहला क्वेश्चन की नॉलेज नहीं है अगर मान लो फाइनेंस की, तो क्या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं. आपको थोड़ा सा रिसर्च की जरूरत पड़ेगी. आपको रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा लर्निंग करना पड़ेगा. कर सकते हैं, इसके लिए कोई अलग से एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं है. अब दूसरी बात आती है कि भाई स्टार्ट करेंगे कैसे, कहाँ पे करेंगे? कोई प्लेटफॉर्म हमारे पास होना चाहिए. तो अभी अगर मैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको बता देता हूँ, शेर खान की एक ऐप है, एस्प्रेसो ऐप. काफी अच्छी ऐप है, सिंपल है. आपको सारे स्टॉक्स दिख जाएंगे स्क्रीन पर. आप इसे डेस्कटॉप पे यूज कर सकते हैं, लैपटॉप पे यूज कर सकते हैं, मोबाइल पे यूज कर सकते हैं. मोबाइल पे यूज करने का ये है कि आप काफी हैंडी है, मोबाइल पे कभी भी यूज कर सकते हैं. सारे के सारे स्टॉक्स आपको दिख जाएंगे. इजीली आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं. अब बात करते हैं कि मैं इसी को क्यों रिकमेंड कर रहा हूं. अभी 1 नवंबर से इनके अकाउंट ओपनिंग चार्ज 0 हो जाएंगे. तो ये अभी एक सही टाइम है इसके लिए. एक और अच्छी बात है इस प्लेटफॉर्म की स्पेशली, कि यहाँ पे क्या होता है कि आपने मान लीजिए कोई भी स्टॉक्स बाय किया और अब उसको सेल किया. अब मान लीजिए अगर आप उस स्टॉक्स को प्रॉफिट में सेल कर रहे हैं, तभी आपको ब्रोकरेज चार्ज देना है. अगर मान लीजिए आप लॉस में उसको सेल कर रहे हैं, वहां पे आपका ब्रोकरेज चार्ज लगता ही नहीं है. तो आइए एक्सप्लेन करता हूँ ये पे वेन योर प्रॉफिट डिटेल में. देखिए कोई भी शेयर जब हम खरीदते हैं तो आपको पता होगा कि बायर साइड ब्रोकरेज पे करनी पड़ती है एस्प्रेसो में. वो आपको हर केस में करनी पड़ेगी. एक्चुअल में कुछ एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मान लीजिए हमने कोई 200 रुपये में एक शेयर परचेज किया. अगर आप उसे 220 रुपये में सेल कर देते हैं तो मतलब आपको हुआ प्रॉफिट. तो आपको सिर्फ प्रॉफिट के केस में ही ब्रोकरेज पे करनी पड़ेगी. अगर मान लीजिए उसी शेयर को आप लॉस में 170 रुपये में सेल करते तो यहाँ पे आपको लॉस हो गया, तो लॉस के केस में आपको ब्रोकरेज पे करने की जरूरत नहीं है. यानी आपको प्रॉफिट होगा तो ही ब्रोकरेज चार्ज देना है, अदरवाइज नहीं देना. अब यहाँ पे लास्ट जो आपका क्वेश्चन था वो ये था कि भाई हम पहले सीखेंगे कहाँ से इन्वेस्टमेंट. तो प्लेटफॉर्म हमें पता चल गया, सारी चीज पता चल गई. तो इनका एक प्लेटफॉर्म है मनी फ्लिक्स करके. अच्छा. अभी लॉकडाउन में आपने देखा सब कुछ हम ऑनलाइन कंज्यूम कर रहे हैं, कंटेंट, चाहे वो वेब सीरीज हो या फिल्म भी आजकल ऑनलाइन आ रही है. तो सेम ऐसा ही एक ऑनलाइन एक कंटेंट प्लेटफॉर्म है मनी फ्लिक्स. और यहाँ पे आपको जितना भी कंटेंट मिल रहा है वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है. यानी आप कंटेंट कंज्यूम करेंगे और आप लर्न करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में. तो अब एक चीज और भी है कि जब आप एस्प्रेसो में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको जो मनी फ्लिक्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उसका 1 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिल जाता है. That sounds very interesting. हम काफी लोग अच्छा ऑनलाइन ऐप इतना है. टाइम स्पेंड करते ही हैं, गेम्स खेलते हैं, वेब सीरीज देख बिल्कुल रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, सो वी माइट एज वेल स्पेंड आवर टाइम एक्चुअली लर्निंग समथिंग दैट वी कैन पुट टू यूज एंड हेल्प सेव आवर मनी. So that बिल्कुल sounds बिल्कुल interesting.
So तो इससे आप लर्न भी कर पाओगे, इन्वेस्टमेंट भी सीख जाओगे और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट भी हो जाएगा आपका। yeah, absolutely. Yogi ji has just told us a lot of things that we need to register in our minds. Espresso seems to be a fantastic platform to start our investments in. Free account opening from 1st of November, did you say? या So या a lot of pluses I see here, so that sounds interesting. Now tell me one thing, Yogi ji, coming to the next question. How should I analyze a stock? Now I have decided that I want to open my account and I want to start my investments, but how do I analyze a stock really? कि ओके। ये अच्छा है, I should get this. बिल्कुल, 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 बिल्कुल। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। हालाँकि वैसे तो जब लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म के मैंने बारे में आपको बताया तो आप कंटेंट Yeah, कंज़्यूम करेंगे तो धीरे-धीरे सीखेंगे। बिल्कुल। हुँ, लेकिन यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए हमेशा। जैसे मान हुँ, लीजिए आपको किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले तो हुँ, हमें ये देखना है कि यार ये जो स्टॉक्स है इसकी कंपनी कर्ज़ मुक्त होनी चाहिए। इस पे कोई कर्ज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कर्ज़ है ओके। कंपनी पे तो फिर सिंपल सी बात है वहाँ पे हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। दूसरा हमें ये बिल्कुल। देखना है कि इसका रिकॉर्ड कैसा है। ये कंपनी आगे बढ़ रही है या इसका प्रॉफिट आ रहा है, नहीं आ रहा है। हमें लग रहा है कि यार हुँ, लॉस आ रहा है, प्रॉफिट आ ही नहीं रहा, तो वहाँ पे इन्वेस्ट करना बेकार रहेगा। और जब हम इस तरह से मार्केट में जब हम इन्वेस्ट करने जाते हैं, धीरे-धीरे पत सीखते हैं, तो हम क्या कंपनीज़ के बारे में पता लगता है धीरे-धीरे, कि यार ये स्टॉक्स अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, फ्यूचर में इसका अच्छा परफ़ॉर्मेंस होने वाला है, वहाँ हम इन्वेस्ट करेंगे। हमें लगेगा यार ये जो कंपनी है इसका फ्यूचर में अब मतलब पहले भी अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा और फ्यूचर में हमें लगेगा फ्यूचर में पता नहीं अच्छा करेगी या नहीं करेगी, थोड़ा-सा हमें डाउट है, तो वहाँ पे हम इन्वेस्ट हुँ। करने से बचते हैं। बस सिंपल से यही बेसिक है, बाकी तो धीरे-धीरे जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी सीखते चले जाएँगे। So I think it's basically a learning curve कि आप धीरे-धीरे करते-करते ही सीखोगे. So to start with, maybe for a safe bet, invest in companies that you know have been doing well in the market for a long time, जिनका कोई losses नहीं है. And then धीरे-धीरे maybe we learn more and you learn to assess the risks बिल्कुल, yourselves, बिल्कुल, right? बिल्कुल, बिल्कुल, Yeah. बिल्कुल। And and how do you figure, when to hold a stock or when to sell a stock? Like when do you know that this is the best time and you should sell your stocks right now? Yeah, you should hold on to it अभी और वैल्यू बढ़ेगा. ये सब कैसे पता चलता है? देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो अपना माइंड सेट करके रखिए कि इसमें जल्दबाज़ी बिल्कुल नहीं करनी है हमें। एक ओके. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें सोचना ही हमारा माइंड सेट होना चाहिए। और हम्म. अगर बात करें तो मेरे हिसाब से 3 साल का तो लॉकिंग पीरियड हमें रखना ही चाहिए। कि यार इतने तो हम होल्ड अच्छा. रखेंगे। उसके बाद हमें मार्केट को भी नज़र करना है कि मार्केट को देखते रहना है। हमें लगे कि मार्केट एकदम पीक पे जा रहा है और भाई अब तो ब्लास्ट होने ही वाला है तो हम्म. वहाँ बेच देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। इवन ये ज़रूर है कि हमें जल्दबाज़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अच्छा. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेके चलना है और अलग-अलग दूसरी बात एक और भी है, कि जब हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो अलग-अलग स्टॉक्स में हम पैसा लगाएँ, सारा पैसा एक स्टॉक में भी हमें नहीं लगाना, अलग-अलग में अच्छा. लगाएँगे, सिंपल हम्म. बस यही सब करना है, बाकी बस यही है मेन बेसिक कि जब तक हमारा एकदम बढ़िया नहीं होगा तब तक हम प्रो नहीं बन पाएँगे, सिंपल सी बात ये है। योगी जी, दिस हैज बीन सच अ फन एंड एनलाइटनिंग चैट. मैं अगर इन्वेस्टमेंट में जीरो थी इस चैट के पहले, नाउ आई एम एटलीस्ट एट अ 10% आई थिंक. एंड काफी मजा आया यार. आई थिंक आई नो अ लॉट मोर अबाउट इन्वेस्टमेंट नाउ एंड आई एम रेडी टू इन्वेस्ट. जस्ट टेल मी वन थिंग. What do you think is the right percentage to invest? Like, suppose I'm earning an X amount of income, और मुझे अब मैं चाहती हूँ कि मैं फन भी कर सकूं, ट्रैवल भी कर सकूं, मेरे सारे नीड्स भी पूरे हो जाएं, बट आई ऑल्सो इन्वेस्ट. सो व्हाट शुड बी लाइक द राइट परसेंटेज? कैसे मैं ब्रेक डाउन करूं इस चीज का? ओके, देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि सारा पैसा कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हमेशा क्या हम्म. करें सारी चीज़ें जितनी भी हम चाहे वो खर्चा कर रहे हैं अपने ऊपर या फिर हमारी लाइफ़स्टाइल के ऊपर कर रहे हैं या हम उस पे हम्म. कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, वो सब कुछ हमारी अर्निंग पे डिपेंड करता है। तो इसका हम्म. एक ये लेके चल सकते हैं हम जितना भी अर्निंग करते हैं, तो सिंपल सा है कि भाई हम्म. 50% तो हमारा जो कहते हैं ना कि गुज़र-बसर करने में खर्च हो जाता है, बचता है हाँ, हाँ. 50%। तो वहाँ पर हम्म. आप 20% इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हैं सेव कि भई 20% हमें इन्वेस्ट करना है और 30% जो है वो हम अपने डिज़ायर पूरे कर सकते हैं। ट्रैवल करना है, घूमना है, कैमरा खरीदना है, नया मोबाइल खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है। तो ये रेशियो रहना चाहिए आई थिंक अर्निंग में। Thank you, Yogi ji. This has been such a fun and enlightening session. I've had a lot of fun talking to you. And to everybody who's watching this, my audience, Yogi ji's audience, I hope you've had a lot to take away from this session and that you now know the basics of investing, how to analyze a stock, how to get started in the whole business of stock market, when to hold a stock, when to sell a stock, what are the good platforms to, start investing in. And a special shout out to my female audience. I hope all of you are listening and we're no longer in the era where we're dependent on our male counterparts. We're all very independent, we're earning for ourselves, and
we like own our lives. So let's start investing. Let's take a hold of our finances and do something good with it. And I hope you all start investing. I'm really definitely going to start investing now. And just one last question, Yogi ji, where बिल्कुल do I get this espresso app? How do I start? Where do I get it? ये बहुत ही सिंपल है। मेरा जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एस्प्रेसो का और लिंक पे जाइए, Okay. क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, यूज़ कीजिए। Thank you everybody for watching this video and staying on till the end. I hope you had a lot to take away from this video and that you will start investing now for a stable tomorrow. I really look forward to hearing from you all on your views and opinions. And thank you. You can find the link to Espresso in my description. So go ahead, download the app and get started. See ya. Bye.